Very good evening, students. So, last lecture we have started with the sums. It was being based upon the addition theorem. And with respect to that addition theorem, we have completed one sum which was based upon the playing of cards. And now after that, come to sum number 23. Sum number 23. And in sum number 23, here what is the question is a number is selected. A number is selected at the random from the first 1,000 natural numbers. What is the probability? The number so selected would be a multiple of 7 or 11. Would be a multiple of 7 or 11. So everyone start answering. But since a number is selected from a 1,000 natural numbers, tell me the total number of ways in which the number can be selected. चलो बच्चा लोग फटाफट आंसर दो. It will be 1,000 C1. Yes, correct. 1,000. Yes, so write down. Since a number is selected from the 1,000 natural numbers. Next line. Therefore, the total number of ways in which the total number of ways in which a number can be selected. A number can be selected is 1,000 C1. And everyone knows that 1,000 C1 it is none other than but it is representing n of s. N of s is equal to 1,000 C1. Therefore, n of s is equal to 1,000. Ready? Now, here, if I assume that let A be the event,
in which the number which is selected it is a multiple of 7, and B be the event in which the number which is selected it is a multiple of 11. So I want to find the probability in which the number which is selected it is either a multiple of 7 or 11. और बोला, क्या बोला बड़ा? और, तो वी नो दैट बड़ा कि सम में और का आना बड़ा ये इस बात का बड़ा संकेत है कि द गिवन सम इट मे बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द एडिशन थियरम बड़ा, राइट? बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एडिशन थियरम यूज होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक बड़ा मैंने सेकंड कंडीशन को चेक नहीं किया है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन इज कि बिटवीन द टू इवेंट्स बड़ा देयर हैज टू बी अ समथिंग कॉमन एलिमेंट्स बड़ा। तो चेक करो बड़ा, इन 1000 नेचुरल नंबर्स, 1000 नेचुरल नंबर्स बड़ा, क्या हमारे पास ऐसा कोई कॉमन नंबर है बड़ा जो 7 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है? तो आंसर इज यस। वन नंबर इज बड़ा 77, other number is बड़ा 154, है कि नहीं? Like that there will be many numbers बड़ा। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी बड़ा सेटिस्फाई हो गया है। That means once again it is confirmed बड़ा कि sum will be solved by using sum will be solved by using addition theorem बड़ा। write down let बड़ा capital A be the event बड़ा। Let capital A be the event in which the number which is selected is a multiple of 7 is a multiple of 7। इसका मतलब यहाँ पे it will be 7, 14, 21, 28 एंड फिर डॉट 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 बढ़ू। भाई अपने भी तो लिमिटेशंस हो गए कि नहीं मैडम? टेबल जहां तक आते हो तब तक लिखेंगे मैडम। तो उसके आगे क्या है मैडम? तो उसके आगे देखो, नाउ द मैजिक ऑफ कैलकुलेटर मैडम। सब लोग बड़ा कैलकुलेटर निकालो अपना, और मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा करो। 1000 को 7 से बड़ा डिवाइड करो, आंसर 142 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ऐसा। बराबर है? इसका मतलब जो आंसर तुम्हें मिला है मैडम, है कि नहीं, वो 142 एंड 143 के बीच में लाए होता है, राइट? मुझे बेटा ये पता करना है कि मेरा जो लास्ट नंबर होगा डिविजिबल बाय 7 वो क्या होगा। तो सबसे पहले 7 को 143 से मल्टीप्लाई करो, आंसर जो तुम्हें मिलेगा वो 1001 होगा। भाई 1000 चलेगा बोल? 1000 चलेगा अपने को नहीं, क्योंकि नंबर तो बड़ा सिलेक्ट हुआ था 1000 में से। इसका मतलब 143 से मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिला बेटा वो तो बड़ा हो गया। 142 से मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 994 चलेगा सब लोग को?
चलेगा। तो ये जो 994 जो तुम्हें मिला मैडम, वो तुम लोग को 142 से मल्टीप्लाई करके मिला, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग बड़ा ब्रैकेट में नीचे लिखो कि देयर आर there are 142 natural numbers which are the multiple of 7. But by are we interested but in 142? No. We are but interested only in one. So next one, write down. Therefore, the number of ways in which a number which is a multiple of 7 a number which is a multiple of 7 can be selected is 142C1. This 142C1 it represents n of a. So n of a is equal to 142. So ready? Next, by using the formula for P of A, P of A is equal to 1 n of A upon n of S. Therefore, P of A is equal to 142 upon 1000. आंसर इज बड़ा रेड्यूसिबल, पर हमें आंसर को बड़ा रेड्यूस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट। तो लेट B be the multiple in which the number which has been selected it is multiple of 11. Multiple of 11.
चलो रेडी। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Days 11, 22, 33 और टाइम चलो। अभी अभी तुम लोग को बड़ा मैंने मैजिक बताया था। 1000 को बड़ा डिवाइड कर डालो 11 से, आंसर 90 पॉइंट समथिंग आया होगा। आंसर लाइज बिटवीन बटा 90 एंड 91। 91 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और बड़ा हो जाएगा बड़ा नंबर। 90 से करो, चेक करो सब लोग को बड़ा लास्ट नंबर ही आया था। तो नेक्स्ट लाइन बड़ा, you can write down bro. There are 90 bro, 90. There are 90 natural numbers bro, which are the multiples of 11 bro. Therefore, the number of ways bro, in which a number bro, which is multiple of bro, 11 can be selected bro, is 90 C1 bro, is bro, 90 C1. Okay, bro. Therefore, n of s bro, sorry, not n of s, sorry, n of b is equal to, okay, bro, n of b bro, is equal to 90 C1. So, therefore, n of b bro, is equal to 90. n of b bro, is equal to 90. भाई आराम से इसमें से p of b मिल जाएगा सब लोग को। तो मुझे बताओ व्हाट इज p of b will be equal to
n of b upon n of s. What I think. N of b upon n of s. Therefore, probability of b it will be equal to 90 upon 1000. चलो उसके आगे बढ़ा आगे saying sort of a intersection b a intersection b is the event of getting a number event of getting a number which is a multiple of 7 and multiple of 11 है कि नहीं। अब यहाँ पे तुम लोग बड़ा एक बार चेक करो, जब तुम लोग ने बड़ा मल्टीपल ऑफ 7 के जो आउटकम्स लिखे थे बड़े, क्या उसमें तुम लोग ने सारे आउटकम्स लिखे थे बड़ो? नहीं। जब तुम लोग ने बड़ा मल्टीपल ऑफ 11 के जब तुम लोग ने बड़ा आउटकम्स लिखे थे, तो क्या तुम लोग ने उसमें बड़ा सारे आउटकम्स लिखे थे? नहीं, है कि नहीं। तो जब तुम लोग बड़ा ए और बी में बड़ा जब तुम लोग कॉमन एलिमेंट्स बड़ा फाइंड करने की ट्राई करोगे, तो ये दोनों में बड़ा ए और बी में सिवाय के बड़ा डॉट 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 तुम्हें और कोई चीज बड़ा कॉमन नहीं मिलेगी बड़ा। और बड़ा डॉट 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 से सम सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? भाई यहाँ पे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं विसा? बेटा यहाँ पे तो मसला हो गया कि नहीं बेटा? यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे डॉट 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 लेके सम सॉल्व कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करें बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। फिर देख, जो नंबर बेटा 7 का मल्टीपल है एज वेल एज बेटा वो 11 का भी मल्टीपल है बेटा, इसका मतलब बेटा वो नंबर 77 का मल्टीपल होगा, राइट? द नंबर which is multiple of 7 as well as beta of 11, that same number will be also the multiple of 77. अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर कैसे? अरे सिंपल, द LCM of 7 and 11, LCM of 7 and 11 is 77 बड़ो। समझ में आ रहा है सबको? तो वहां पे बड़ा तुम लोग ब्रैकेट में लिखो बड़ो the number which is number which is multiple of 7 and
multiple of 11 is also the is also the multiple of 77 मैडम तुम लोग कंटिन्यू करो because the LCM of 7 and 11 is 77 मैडम. Because the LCM of 7 and 11 is 77. ये A intersection B. It will be 77, 154. चलो बड़ा use the calculator. Show me the magic of calculator. Answer 12 और 13 के बीच में आया होगा मैडम. थर्टीन से करोगे तो बड़ा हो जाएगा मैडम. 12 से करोगे तो चेक करो मैंने जो आंसर लिखा है राइट लिखा है मैडम. मैंने जो लिखा है वो राइट है. गुड. सब लोग बड़ा कैलकुलेशन करो. ऐसे कितने नंबर्स मिले बड़ा मुझे. कितने नंबर्स मिले बड़ा मुझे. 12. तो राइट डाउन देयर आर बड़ा 12 numbers which are the multiple of 7 as well as 11. Next time therefore the number of ways in which a number which is multiple of 7 as well as 11 can be selected is twelve C1 by 12 C1 what it represents. N of A intersection B is 12 C1 therefore N of A intersection B is equal to 12. अब यहाँ से तुम्हें मिलेगा प्रोबेबिलिटी
Probability of A intersection B is equal to n of A intersection B upon n of A student. So probability of A intersection B is equal to 12 upon 1000. Next, by using the Bada addition theorem, probability of A union B